हरे कृष्ण प्रभु। तो आप सब लोग लेट हो गए, प्रभु जी पहले आ गए। तो आप सबको आज के थर्सडे क्लास में स्वागत करते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जीसस बालक पार्थसारथी प्रभु उनके मूल्यवान समय एसोसिएशन संघ हम सभी भक्तों को दे रहे हैं। तो अभी प्रभु कीर्तन करेंगे और फिर कीर्तन के बाद मैं प्रभु का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर बहुत इम्पोर्टेंट कथा आप सबको सुनाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी भक्तों से कि आज का जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है और आप बहुत सिंसियरली क्लास में है और बहुत साइलेंस प्लेस में बैठ जाइए। ओके, और जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं जो फॉलो करते हैं उनसे निवेदन है कि आप कृपया देखिए जो डिवोटी अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहे? यस प्रभु। तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Jaya Radha Govinda, Jaya Jagannatha, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Guru আমি সাউন্ড অফ করেছিলাম, এখন চালু করলাম। Hare Krishna. So I welcome all of you again for today's satsang program. So we are very fortunate to have with us His Grace Palak Parthasarathi Prabhu. So Palak Parthasarathi Prabhu is very senior devotee. Prabhu joined ISKCON 2001 in Mayapur, and then he shifted to Calcutta. And 2003, Prabhu and His Grace Asha Gaurang Prabhu, they have begun Bhakti Vriksha here in Calcutta. And now in Calcutta there is 5,000 to 7,000 Bhakti Vriksha devotees all over Calcutta. But it was begun by the hard work and sincere service by Palak Parthasarathi Prabhu and Asha Gaurang Prabhu. So Prabhuji was very instrumental for expanding Bhakti Vriksha program in Calcutta. Prabhu is very sincere devotee in his own practice. Very nice morning program, his sadhana, his services, and Prabhu is very scholarly devotees. He have done his Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, also his teaching Bhakti Shastri. So, so we are very fortunate to have association of Palak Parthasarathi Prabhu. I am very fortunate to have association of Palak Parthasarathi Prabhu for many years. I was serving in Bhakti Vriksha department previously, and we are very closely serving, and he was very loving to me. And in my personal life, I take a lot of inspiration from Prabhuji, from his sadhana, from
for his bhakti towards a spiritual master. Though Prabhuji is very advanced devotee and preaching very nicely, taking care of many devotees, but I have seen Prabhuji is always taking opportunity to serve gurus and like Prabhupada disciples and senior devotees. He learned everything very quickly. I have seen Prabhuji knows almost everything. He knows computer, he knows playing mridanga, he knows cooking, he knows cultivating the different seeds, different plants. He knows very nice preaching and many things, like means single-handedly he can do many things. So so we are very fortunate to have association of His Grace Palak Parthasarathy Prabhu. He is very mature devotee. He is practicing Krishna consciousness many years, and therefore he is very expert to take care and give guidance to others. In my life also, I take guidance and inspiration from Prabhu. So let us welcome Prabhuji from our core of our heart by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhu ki Jai, Jai. So I request everybody be with us till 9 o'clock. So Prabhu will speak 1 hour and then we'll take important question answer. So you have nice opportunity to ask question to Prabhu. हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरे पास इतना कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन प्रभु का माधव प्रभु का ऐसे गुनावली है, दूसरे का प्रति ऐसे भाव है रहता है, दूसरे भक्तों का गुण कीर्तन करना, तो ऐसे सूचित होता है जो माधव प्रभु चाहते मेरा अंदर ऐसे गुनावली आए। तो मैं भी मुझे ऐसे कोशिश करना है जैसे ऐसे गुनावली मेरे पास आए। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। करिए वो चेक कर लीजिए उन्होंने रिस्क लिया है तो पूरा क्लास में चला है। ठीक है प्रभु नित्यानंद अभी दिख रहा है ग्रीन यहाँ पे, ग्रीन लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे ऊपर यहाँ पे। कृष्ण हरि हरि हरे राम राम मुखं कर्ति वाचालं पंगुलं यति गिरि यति गुरुदिनतारिणं परमानन्दं। हरे कृष्णा। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ इस क्लास में और माधव प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आपके बीच में बोलने के लिए। पता नहीं किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कोई 1-2 वक्त मतलब वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो आज मैं श्रीमद् भागवतम जो फर्स्ट कैंटो है उसमें 9वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का उपस्थिति में विष्णुदेव का जो प्रयाण है उस अध्याय से एक श्लोक का ऊपर डिस्कस करूंगा। वो है 27 फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 27 है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान कैमरा इधर है समास अभ्यास पीछे को दबा हुआ है, कैमरा इसमें नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैमरा जब कुरुक्षेत्र युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद भगवान द्वारका लौटने वाले थे तो उस समय उत्तराखंड में जो उनका जो संतान थे परीक्षित महाराज उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया ब्रह्मास्त्र। तो भगवान जब निकालने वाले थे द्वारका का ओर
तो उस समय उन्होंने तो भगवान ने उनका जो गर्भ था वो रक्षा किया। उसके बाद कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान जाने के लिए कोशिश करते द्वारका। तब युधिष्ठिर महाराज का मन में बहुत दुश्चिंता आ गया और उन्होंने मोह में पड़ गया। क्या मोह में पड़ गया? तो उन्होंने सोचने लगा, जो मेरे लिए मैं राज्य भोग करने के लिए इतना लोग को मतलब मरवा दिया, उसको मार डाला, क्योंकि मेरे लिए हुआ। तो भगवान ने उनको बहुत समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने समझ नहीं। वास्तव में क्या भगवान चाहते थे, बाहर में उनको समझाने की कोशिश कर, लेकिन अंदर में परमात्मा का रूप में भगवान उनको समझने नहीं दे, क्योंकि भगवान का दूसरा प्लान था। जो विष्णुदेव कुरुक्षेत्र रणांगण में उन्होंने सर सजा के ऊपर साइड थे और उन्होंने अभी शरीर छोड़ने वाले थे। उनके पास जाने का इच्छा था, भगवान को दर्शन देना चाहते थे। और भगवान का जो भक्त थे विष्णुदेव का जो महिमा बढ़ाना चाहते थे भगवान, तो सारे मतलब जगत को दिखाना चाहते थे। देखिए, मैं भी युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पाया, लेकिन मेरा जो भक्त है भीष्म, उन्होंने समझाया। तो उस समय भगवान कृष्ण सारे पांडवों को लेकर उस जगह पर गया जहाँ पर भीष्म देव शायद थे, और वहां पर जाकर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित किया, जो आपका मन में जो संदेह है, आपका मन में जो मोह है, उसके बारे में भीष्मदेव को पूछिए। तो उन्होंने सब कुछ जानते हैं, महाजन है। तो उस समय सारे ब्रह्मांड में जितना सारे ऋषि मुनिया थे, सब लोग वहां पर उपस्थित थे। तो भीष्मदेव ने ये श्लोक कहा, क्या धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, दान धर्म क्या होता है, राज धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, भगवत धर्म, इसके बारे में संक्षेप में और विस्तारित रूप में उन्होंने बताया। ये श्लोक यहाँ पर दिया गया, दान धर्म राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। भगवान विष्णुदेव दान धर्म के बारे में कहा, उसके बाद राजधर्म के बारे में कहा, उसके बाद मोक्ष धर्म के बारे में। तो दान धर्म के बारे में बोलते हैं, जो प्रभुपाद भी कहते हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनका जो दान होता है, उनका दान का 50% देना चाहिए कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए। और राजधर्म के बारे में प्रभुपाद कहते हैं, जो राजा लोग को ऐसे नहीं होना चाहिए सिर्फ टैक्स कलेक्ट करे। टैक्स कलेक्ट करना राजा को काम नहीं होता है। राजा का काम होता है जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको वापस उनका सेवा में लगाना चाहिए। जैसे जो समुद्र होता है, उनका जो पानी, जो सूरज उन्होंने क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं, उसके बाद बादल का रूप में गिरते हैं, वो नदी में गिरते हैं, नदी जाकर फिर समुद्र में वापस मिल जाते हैं। उसी प्रकार भगवान से हमको सब कुछ मिलता है जो खुद, तो उसको फिर से भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। उन्होंने ये राजा का कर्तव्य होता है। और राजा का और एक कर्तव्य होता है, राजा और गुरु, पिता, माता, इनका कर्तव्य होता है क्या, ऋषभ देव कहते हैं, गुरु न सस्यात्, सजन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात्,
न पदिश्च तत्सात् न मुचयति जत समुपैतम मृत्युम। मतलब उसी व्यक्ति को पिता नहीं होना चाहिए, उसी व्यक्ति को गुरु नहीं होना चाहिए, उसी व्यक्ति को पति नहीं होना चाहिए, उसी व्यक्ति को सजन नहीं होना चाहिए, उसी व्यक्ति को देवता नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति उनका जो अनुगत होता है, जो उनका अंडर में रहते, उस व्यक्ति को न मुचयत जत समुपेतम मृत्युम, ये जो भौतिक जगत से उनको उद्धार नहीं कर पाएंगे, तो उनको पिता नहीं होना चाहिए, माता नहीं होना चाहिए, सजग नहीं। उसी प्रकार एक जो लीडर होता है, राजा होता है, उनका भी कर्तव्य रहता है, सिर्फ उनको भौतिक चीज का फैसिलिटी देना ये नहीं है, उनको ये भी कर्तव्य रहता है उनको कैसे जन्म मृत्यु का चक्कर से उनको उद्धार किया जाए। पिता का भी ऐसी कर्तव्य होता है, गुरु को भी ऐसी कर्तव्य होता है, जो शिष्यों तक उनको उद्धार करने का उनका जिम्मेदारी रहता है। तो ऐसे उनका जो अंडर में है, तो उनका उद्धार नहीं कर पाएंगे, तो उनको ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये एक है राजधर्म। उसके बाद मोक्ष धर्म के बारे में विष्णुदेव बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं मोक्ष धर्म के बारे में, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर उन्होंने कहा। ओके, थोड़ा आगे कर सकते क्या इसको, मतलब उठा सकते हैं मुझे। और पासपोर्ट का जो ये है ना आपका अंतिम जो पैरा है, उसका ऊपर में जो एज पर एज सल्वेशन इज कंसर्न, वो वाला जो है, यस यस, कोई अगर पढ़ सकते क्या, पढ़ सकते? As per salvation is concerned, one has to conquer the principles of lust, anger, unlawful desires, avarice, and bewilderment. To get freedom from anger, one should learn how to forgive. To be free from unlawful desires, one should not make plans. By spiritual culture, one is able to conquer sleep. By tolerance, one can conquer desires and avarice. Disturbances from various diseases can be avoided by regulated diets. By self-control, one can free from false hopes, and money can be saved by avoiding undesirable association. By practice of yoga, one can control hunger, and worldliness can be avoided by culturing the knowledge of impermanence. Dizziness can be conquered by rising up, and false argument can be conquered by factual ascertainment. Talkativeness can be avoided by gravity and silence, and by prowess one can avoid fearfulness. Perfect knowledge can be obtained by self-cultivation. One must be free from lust, avarice, anger, dreaming, etc. to actually attain the path of salvation. ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर विष्णुदेव मोक्ष धर्म के बारे में कह रहे हैं। देखिए, हम मुक्ति पाना चाहते तो हमको इस चीजों से मुक्त होना चाहिए। खास करके जैसे हमारा 6 जो रिपु है, वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ठीक है ना। तो बहुत सारे व्यक्ति प्रश्न पूछते कैसे हम इससे उद्धार हो जाए, कैसे इससे हम मुक्त हो जाए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से विष्णुदेव ने इसका उत्तर देते हैं। तो पहला क्या है, उन्होंने बोलते क्या, जो आप क्रोध होता है, एंगर से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मतलब क्षमा करना चाहिए, ठीक है ना। सुनिए अच्छे से। कभी भी हम जब क्रोध के बारे में कहते हैं, बहुत लोग प्रश्न पूछते, वो जी मेरा बहुत गुस्सा हो जाता, मेरा बहुत गुस्सा आ जाता है, तो हम इसे कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के सुझाव देते हैं। कोई बोलता है मेरा जब गुस्सा आ जाते है तो ऐसे करते मैं 100 से शुरू करता, 100, 99, 98, 97, 6 ऐसे गिनते, जब 1 आ जाता तो हमारा कोट चले जाता। कोई व्यक्ति बोलते मेरा जो गुस्सा आ जाते है, जो
मिरर के सामने हम खड़ा हो जाते, देखते थे हमारा गुस्सा कैसा है। तो देखकर मुझे गुस्सा चला जाता। तो उसी प्रकार बहुत अलग अलग प्रकार के कोई चीज अपनाते, लेकिन क्या है वास्तव में ये चीज इतना मतलब क्या परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, कुछ समय के लिए हो सकते, हर चीज में नहीं, हर बार ऐसे होगा संभव होगा ऐसे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो विष्णुदल कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्रोध से मुक्त होना चाहते तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्षमा करना चाहिए। प्रो में वीडियो खोल रहा हूँ उसकी तो अपनी देखिए गुस्सा में पड़ रहा था, गुस्सा वीडियो का खोल रहा मतलब ये हूँ है कि दूसरा व्यक्ति ने गलत किया उसके लिए हम कष्ट भोग, गलती किसी ने दूसरा व्यक्ति का है लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिया लेकिन कष्ट कौन भोग रहा है, हम भोग रहे हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। हम क्षमा कर देंगे उनको तो हम गुस्सा से बच जा सकते। मैं लगाने वाला हूँ शास्त्र में कहते हैं हम जो आध्यात्मिक वीडियो ऑन कार्य करते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई साल से हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई साल का जो हमारा साधना है, जो हमारा भजन है, वो एक मोमेंट का गुस्सा में पूरा नष्ट हो, एक मोमेंट का थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो पूरा वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको क्या गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं विश्वामित्र का जीवन, तो विश्वामित्र उन्होंने तो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि के पास जब गया, वशिष्ठ मुनि उन्होंने ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि थे, और उनका जो आध्यात्मिक ऑपुलेंस था उसको देखकर उन्होंने उनका प्रति आसक्त हो गया और उन्होंने चाहते थे हम भी एक ब्रह्मर्षि बन जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मर्षि बनना चाहते, लेकिन उन्होंने तो क्षत्रिय थे, कैसे ब्रह्मर्षि बने। बोला ब्रह्मर्षि बनने के लिए तुमको बहुत तपस्या करना। उन्होंने बहुत साल, कोई साल 100 साल उन्होंने तपस्या, लेकिन तपस्या करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उनके पास ये भेज दिया, इंद्र ने मेनका को भेज दिया। तो मेनका का प्रति उन्हें आकृष्ट हो गया और उनके साथ रहने लगे 10 साल, उनका एक बच्चा भी हो गया। तो उन्होंने काम के माध्यम से उन्होंने पतन हो गया। तो बाद में उनको पता चला विश्वामित्र मुनि, तो उन्होंने उनको बोला तुम्हारे लिए मेरा पतन हो गया, तो मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम इस रूप के लिए बहुत गर्वित है, तो अभी क्या तुम्हारे रूप कुरूप हो जाए। तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, तो उन्होंने बंदरी हो गया, तो जो है अंजना, हनुमान का माता। तो उसके बाद उन्होंने फिर से तपस्या करना शुरू कर दिया, बहुत दिन तपस्या कर रहे थे, हजारों साल। उसके बाद और एक अप्सरा को भेजा, उनका नाम है रंभा, लेकिन इस बार तो उन्होंने उनका प्रति आसक्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका पता पहले चले गया था, ऐसे हमारा जो साधना चले गई काम के कारण, लास्ट के कारण, तो अभी हम उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, रंभा को देखकर उन्होंने क्रोध में आ गया और उन्होंने आकर उनको अभिशाप दिया, उन्होंने फिर पत्थर बना। तो क्या हुआ, सेकेंड टाइम उनका क्रोध आ गया, तो जब क्रोध आ गया फिर से उनका जो साधना था इतना हजारों साल 100 साल का, वैसे बहुत लंबा स्टोरी है। तो धीरे धीरे बहुत साल लग गया उन्होंने ब्राह्मण बनने के। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, जब हम कोई साधना करते हैं उसके बाद जब हम इस चीजों का अंदर फंस जाते हैं, तो हमारा वो क्या होता है, वो जो आगे बढ़ने की जाकर रहते वो रुक जाते। हमारा जो ये होता है आध्यात्मिक मार्ग में जो हम आगे बढ़ते वो रुक जाते, उसका पतन होता। इसलिए हमारा
तो आध्यात्मिक जीवन में क्रोध को बहुत ये करना चाहिए, मतलब नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और देखिए आप बोल सकते हैं अच्छा हम ही देखते या सुनते हैं वो जो बड़ा भक्त होता है वो भी क्रोध करते हैं, ठीक है ना, वो भी क्रोध करते हैं, तो क्या है क्रोध करना खराब कैसे बोल सकते हैं? तो है जो भक्त लोग उन्नत भक्त होता है उनका जो क्रोध है हमारा क्रोध में दोनों अंतर है। क्या अंतर है ना, हम क्रोध करते नहीं, क्रोध हमको कराते हैं, और जो उन्नत भक्त होता है वो क्रोध करते हैं किसके लिए, कुछ काम को, कुछ सेवा को कराने के लिए वो करते हैं क्रोध, हम क्रोध के द्वारा करते हैं, समझ में आया। तो जो शुद्ध भक्त होता है उन्होंने क्रोध का तरफ प्रभावित नहीं होता, वो क्रोध को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, भगवान का सेवा कर तो बढ़ाने के लिए। कोई भक्त ने ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है उनको थोड़ा क्रोध दिखाते हैं, लेकिन उनका क्रोध पूरा कंट्रोल में रहता है, क्रोध का तरफ प्रभावित नहीं होता। लेकिन हम जब क्रोधित हो जाते हम क्रोध का तरफ और हमारा मन में बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, क्रोध जो हमारा आ जाता है, हम बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कभी क्रोध का तरफ अफेक्टेड नहीं होता। मैं सुना है बहुत सारे मतलब बहुत सारे भक्तों को डांट रहे थे, क्रोधित हो गया था, उसके बाद वो खुद हंस रहे थे, कुछ समय के बाद उन्होंने हंस रहे, मुझे कुछ इफेक्ट नहीं। लेकिन हम कभी क्रोधित हो जाते सारा दिन भर उनका हमें याद रहते हैं या 2-3 दिन याद रहते हैं, सप्ताह भर याद रहते हैं, किसी का व्यवहार। इसलिए हमारा क्या है, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। और जो उन्नत भक्त होता है उनको क्रोध को भगवान का सेवा में लगा, जैसे हनुमान जी क्रोध को लगा दिया, अर्जुन जी क्रोध को लगा दिया। और क्या होता है जो तो क्रोध के लिए ठीक है, तो क्रोध के लिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे विष्णु जी आपको कह रहे हैं तो हमको क्षमा करना चाहिए। ओके, और मेरा पॉइंट देखिए आ गया। क्रोध ऐसी चीज है जैसे आग जैसा होता है, तो आग को क्या करना चाहिए, हमको सही ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत कुछ काम हो सकता है, ठीक है ना, आग को लगा। लेकिन अब मान लीजिए आग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको जला देंगे, उसी के बाद हमको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा काम करें, लेकिन उसके द्वारा आपको नहीं होना चाहिए, सावधानी से हमको करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहते हैं अवैध जो वासना होता है उससे मुक्त होने के लिए भविष्य में जो हमको प्लान नहीं करना चाहिए, to be free from unlawful desires one should not make plans। अनलॉफुल डिजायर मतलब अवैध जो वासना होता है उसे हम कैसे मुक्त हो जाए, हमारे मन में बहुत सारे वासना आते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं विश्वदेव नॉट मेक प्लान्स, मतलब उसके लिए कुछ प्लान नहीं करना चाहिए। आपका मन में कुछ वासना आ जाते जो मतलब शास्त्रीय नहीं है और सिंफुल है, तो वहां पर रोकना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, वो अच्छा इस मन में आ गया हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और जो प्लान करेंगे तो क्या और उसमें ज्यादातर फंसते रहेंगे, हम उसमें ज्यादातर फंस रहे, तो उसको पहले रोक देना चाहिए। जब ऐसे अनलॉफुल जो डिजायर आते हैं तो वहां पर हमको तुरंत रोक देना चाहिए, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। कभी कभी हमारा ऐसा होता है उस डिजायर में हम फंस जाते हैं, उसमें हम चिंतन करने लगते हैं और उसमें हम आनंद लेते हैं, मन में मेंटल प्लेटफॉर्म में उसको हम आनंद लेते हैं। तो क्या होता है उसमें हम धीरे धीरे, अभी तो सेटल में है, उसके बाद डॉसली हम अटक जाते हैं। इसलिए पहले जब हमारा डिजायर आएगा उस समय हमको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, प्लान नहीं करना चाहिए।
कैसे बच सकते हैं। उसके बाद by spiritual culture one is able to conquer sleep। ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, मतलब नींद आती है। तो हम देखते हैं जब हम कृष्ण भवनामृत में आते तो हमको सुबह मंगल आरती करना पड़ता है। और मंगल आरती जब करने के लिए बोलते तो नींद से हमको उठना बहुत मुश्किल, ठीक है ना। और कभी भी उठ भी जाते तो मंगल आरती में खड़ा रहते हुए भी हम सो जाते, खड़ा होते ऐसे। उसके बाद जॉब शुरू करते तो पूरा सो जाते, ठीक है। तो ये नींद जो होता है मतलब इसको मतलब जीत पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन इस नींद को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। विश्वदेव कह रहे हैं स्पिरिचुअल कल्चर, ठीक है, स्पिरिचुअल कल्चर वन कैन कॉन्कर द स्लीप। तो आप जितना आध्यात्मिक प्रैक्टिस जितना करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, भगवान का नाम करना, कीर्तन करना, भक्ति करना, तो धीरे धीरे आपका जो स्लीप निद्रा वो कम हो जाएगा। स्लीप का मतलब क्या है, निद्रा का मतलब है, निद्रा का कारण क्या है, तमोगुण। तमोगुण का कारण में हमारा निद्रा आती है, ठीक है ना। अभी रजोगुण में क्या होता है, पैशन, वो बहुत ज्यादा कर्म करते हैं, बहुत कामना रहता है, वासना रहता है, बहुत सारे डिजायर्स रहता है। सत्य गुण में ज्ञान का स्तर में रहता है। तो ये जो निद्रा होता है तमोगुण का लक्षण। तो इस तमोगुण से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, आध्यात्मिक एक्टिविटीज के माध्यम से हम तमोगुण से ऊपर हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को भगवद गीता में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तै गुण जो हे अर्जुन, ये जो 3 गुण से ऊपर उठना चाहिए, 3 गुण का ऊपर कैसे हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति के माध्यम से हम 3 गुण का ऊपर जा सकते हैं। वांचो जो अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो मेरा अभिचारी भक्ति करते वो 3 गुण का ऊपर चले जाते। अभी तमोगुण तो बहुत नीचे है, उसका ऊपर रजोगुण, उसका ऊपर सत्वगुण का भी ऊपर चले जाते भक्ति करते। तो आध्यात्मिक प्रैक्टिस जितना होगा उतना हम सत्वगुण में आएगा तो हमारा नींद और तमोगुण का चीज चलेगा, बहुत सारे तमोगुण का चीज। हम देखते हैं जो गोस्वामी लोग है, गोस्वामी सनातन गोस्वामी लोग सिर्फ 1-2 घंटा सोते थे, ज्यादातर भगवान का सारा दिन मतलब रात तक भगवान का भी रात को शायद 2-3 घंटा सोते थे। उसके बाद उन्होंने इतना सारे जो किताब है उन्होंने उसके बाद जब करते, उसके बाद मंगल आरती, उसके बाद मॉर्निंग ऊपर का ऐसे सिस्टम था। तो उन्होंने भी बहुत कम समय, इसको हम मतलब क्या कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते। हम भी चलो काल से हम शुरू कर देंगे, 1 बजे उठ जाएंगे, ठीक है ना, 10 बजे सोकर 1 बजे उठ जाएंगे 3 घंटा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे तो हम निंदा को चल। उसके बाद by tolerance only can one conquer desires and avarice. Disturbances from the various diseases can be avoided by the regulated diet. Okay. उसके बाद विष्णुदेव कहते हैं जो लोभ जो होता है, लोभ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके लिए हमको टॉलरेंस सहन करना। लोभ कैसे होता है, दूसरे व्यक्ति के पास लेकिन मेरा पास नहीं, हमारे पास लोभ हो जाए। दूसरे के पास संपत्ति हो
या उनके पास कोई कार हो, या उनका पास अच्छा बंगलो हो, या जो कुछ हो, उनका अच्छा फ्रेंड हो, ठीक है, कोई भी हो, तो उनका होते हमारा लोभ हो जाता है। तो हमारा मन भी इच्छा होता है, चलो हम भी ऐसे बनेंगे, ऐसे हमको कहीं कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं प्राप्त करने के लिए, और उस प्रयास करते करते हमारा जिंदगी चले जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जो हमारा जो लोभ होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमको टॉलरेंस, सहन करना, ठीक है, उनके पास से सहन करो, लेकिन उनको देखकर भी हम चाहते नहीं चुप लेना चाहिए, तो हम मतलब उल्लू में फंस जाए। ठीक है, उनके पास है, उनके पास धन है या गाड़ी है, कार है, ठीक है, उनके पास है, लेकिन मैं इसमें संतुष्ट हूँ, मेरा पास जो है इसमें। वो बात कहते थे, तो हमारा जीवन में मतलब सिंपल लिविंग होना चाहिए, हाई थिंकिंग लिविंग सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल लिविंग करने के लिए ज़्यादा आपको प्रयास नहीं करना, लेकिन आप आपका जीने का तरीका बहुत बड़ा कर देंगे, आपको बहुत कष्ट करना तो मेंटेन करने, तो उसमें फंस जाएंगे तो हमारा पूरा टाइम भी चले जाएगा, भक्ति करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सिंपल लिविंग होना चाहिए और उसके बाद भगवान का भक्ति करना चाहिए, इसलिए सहन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं, जो हमारा बीमारी होता है, ठीक है, वेरियस डिसीज होता है, कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलेटेड डाइट। ये हम देखते हैं, देखिए जितना सारे बीमारी है, उसका बीमारी का मूल कारण आप देखेंगे तो मतलब हम जो खाते हैं ना, उसका ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, शुगर हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं, डायबिटीज हो जाते हैं। इसके कारण क्या है? खाने का प्रति उनका कंट्रोल नहीं। कोई व्यक्ति उनका खाने का कंट्रोल कर दे तो मोटामोटी मैक्सिमम 90% के ऊपर उनका बीमारी चले जाए, उसका कंट्रोल हो जाए। तो जितना सारे लोग हैं वो उनका कंट्रोल नहीं है, तो शुगर की हो जाते, ज्यादातर स्वीट खाते। तो हमारा जितना भोग करने का है वो एक क्या है, एक कोटा होता है, इतना भोग। मान लीजिए जिंदगी भर आप 40,000 रसगुल्ला, आपको 80 साल है, 80 साल आप जिएंगे, 80 साल में उस 40,000 रसगुल्ला आपको खाने का कोटा है। कोई व्यक्ति 40 साल में, 50 साल में पूरा 80 मतलब 40,000 रसगुल्ला खा लिया, तो क्या होगा, उनका कोटा समाप्त हो गया। अभी क्या करेंगे? अभी चलो उनको शुगर दिया जाए, अभी रसगुल्ला नहीं खा पाएंगे। बाकी जीवन जो है 30 ईयर या 40 ईयर उनको विदाउट शुगर, विदाउट रसगुल्ला जीना, किंतु उनका जीवन का इतना सुख है, उनका कोटा है। हम हमारा भोग का जो है ना वो पूरा दिया गया, इतना हम भोग करेंगे, इतना सुख, इतना भोग। लेकिन हम उनको क्या करते हैं, एक्सेलेट करेंगे, कुछ कम समय में उनको पाना चाहते हैं, कुछ कम दिन में पाना चाहते हैं, मतलब बाकी जीवन क्या होगा, आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर उनको खींच लिया। इसलिए हमारा कृत्रिम रूप से प्रयास नहीं करना, कृत्रिम रूप से प्रयास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत, उनका जीवन बहुत रेगुलेटेड है, वो व्यक्ति अच्छा से जीते हैं, अच्छा से भोग करते। जिनका मतलब रेगुलेटेड नहीं है, उनका जीवन में दुख। रेगुलेटेड होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं, अरे थोड़ा क्या रेगुलेटेड होने का क्या है, नियम पालन करने का क्या है, तुम्हारा ऐसे करेंगे, भक्ति करने जाएगा तो ये नियम है, ये नियम है, ये नियम क्या है? नियम हम नहीं मानना चाहते। अरे बाबा, आप इस नियम फॉलो नहीं करेंगे, दूसरा नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप ज्यादा स्वीट खाते रहेंगे तो आपके बाद में वो स्वीट नहीं खा सकते,
शुगर हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन में जो कुछ खाना, सोना, रहना, विहार करना, सब कुछ को हमको क्या करना, कंट्रोल करना चाहिए। सिस्टमेटिक होना चाहिए, शास्त्र का अनुमत होना चाहिए, वो व्यक्ति अच्छे से जी सकते। लेकिन जो व्यक्ति उनका जीवन में कुछ रेगुलेशन नहीं है, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, तो उनका जीवन में बहुत दुख आने वाला। अभी इस जीवन में क्या है, आप देखेंगे कोई व्यक्ति नियम पालन नहीं करना चाहते, फॉलो नहीं करना चाहते, तो उनका मन में जो कुछ चाहता है वो करना चाहते, तो उनका जीवन में बहुत दुख आ जाता है, बहुत सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारा जो डाइट है उनको रेगुलेटेड करना चाहिए, तो हम बहुत सारे बीमारी से मुक्त होंगे। मेरा खुद का जीवन में मैं देखा तो एसिडिटी हो जाती है, मैंने ज्यादा खा लिया, या कुछ चीज खाने से आपको एसिडिटी होता है, ठीक है ना, कुछ चीज खाने से आपको एलर्जी होता है, तो देखना खाने से एलर्जी होता है, हम नहीं खाना चाहिए। इस चीज खाने से आपको एसिडिटी होता है, ये नहीं खाना चाहिए। तो आप धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं खाना के बारे में, जो जोगी होता है वो क्या करते हैं, वो जितना खा पाएंगे उनका आधा खाते, 50%, 25% पानी में भरते, 25% हवा के लिए छोड़ते, वो होता है जोगी। तो उनका मतलब बीमारी ज्यादा नहीं, ऐसे उन्होंने सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारा डाइट को कंट्रोल करने से हम अलग प्रकार का आशा होती है, मतलब उनका कुछ बेस नहीं है, ठीक है ना। वो सोचते रहते हैं ऐसे होगा, ऐसे होगा, हमको ऐसे जॉब मिल जाएगा, हम साल में इतना हम कमाएंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो मतलब उनका कुछ वैल्यू नहीं रहता। तो जो मिथ्या हमारा ज्यादातर मनुष्य इसमें सपनों में रहना चाहता है, बहुत समय से सपने ही देखते, कभी सोचते मेरा पास ऐसे एक क्या नाम है स्टोन मिल जाए, टच स्टोन, किसी को लोहे का पर्स कर देंगे, सोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो। कभी आध्यात्मिक भी हम लोग सोचते हैं, हमारा इतना रुपया आ जाएगा, हम एक बड़ा मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वास्तव में तो हमारे पास नहीं आ रहा है। हम इसे सोचकर, हालांकि हम आध्यात्मिक चीज सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना। आत्मसंयम के माध्यम से मिथ्या आशा से हम मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद कहते बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा वन कैन कंट्रोल हंगर। हमारा जो मतलब खुदा होता है, तृष्णा होता है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो भी आध्यात्मिक योग अनुशीलन के माध्यम से। तो जो मतलब हमारा शरीर जो है, इस शरीर को मिनिमम कुछ चीज चाहिए, जैसे खाने का चीज, ठीक है ना, खाने का आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चीज चाहिए, शरीर का ये धर्म होता है। लेकिन इनको क्या है, मतलब बहुत कम करना, जितना कम से उनको किया जाए उतना अच्छा है। तो जो भक्त होता है उनका जो एक चीज है उनको कंट्रोल करती है, तो उनका हंगार ये सब भी कंट्रोल होता है, वो भक्ति करने से होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हम देखते हैं गोस्वामी लोग का एग्जाम्पल है, बहुत कम उनको खाते थे, मतलब, लेकिन उन्होंने भक्ति कर। सनातन गोस्वामी, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने सिर्फ एक ड्रोन जो है छाछ पीते थे, दिन भर एक ड्रोन। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में इतना अग्रगति कर लिया, उनमें उनको मतलब मजे रमे रहते हैं, उनका जो भौतिक चीज बहुत कंट्रोल। उसके बाद कहते हैं एंड वर्ल्डलीनेस कैन बी
avoided by culturing the knowledge of impermanence। मतलब है जो हमारा जो विषय भोग करने का इच्छा होता है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमको जानना चाहिए ये जो भौतिक जगत है इम्परमानेंस मतलब अनित्य, इस जगत का अनित्यता के बारे में हमारा ज्ञान हो जाएगा तो हम विषय भोग करने का इच्छा नहीं रहेगा। तो हमारा विषय भोग करने का इच्छा क्यों रहेगी? क्योंकि हम सोचते हैं मेरा परमानेंट है, लेकिन वास्तव में परमानेंट क्या है? भगवान का भक्ति करना परमानेंट, भगवत धाम में जाना, वहाँ पर भगवान का सेवा करना, ये हमारा परमानेंट चीज है। लेकिन इस भौतिक जगत का जो भोग है, इसको तो हमको जीने के लिए जितना चाहिए उतना लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। इस भौतिक जगत का अनित्यता के बारे में हमको ज्ञात होना चाहिए। इसके बारे में एक उदाहरण है, जैसे कि लोमस मुनि होता है। लोमस मुनि, ये लोमस मुनि क्या होता है, उनको एक वर मिल गया शिव जी से, शिव जी को पसंद नहीं किया, उनको वर मिला। तो उन्होंने एक बार एक व्यक्ति के पास गया, तो उन्होंने उनका जो पैलेस बना था, जनक महाराज से, राम दशरथ महाराज के पास गया, उन्होंने पैलेस बना। तो उन्होंने देखा बहुत अच्छा से पैलेस बना रहे। उन्होंने पूछा आपका कुटिया कहाँ पर है या आपका प्लेस आप कहाँ पर रहते? मैं बोला मेरा कुछ नहीं, मेरा कुटिया मुझे कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला, लोमस मुनि ने कहा तो कुटिया बनाने का क्या है, हम तो कुछ दिन के लिए रहेंगे, कुटिया बनाकर क्या हो, कुछ दिन के लिए है, कुटिया बनाने का कुछ दरकार नहीं। जैसे कोई व्यक्ति कोई टूर में जाते, उनके पास ज्यादा सामान नहीं रहे, बहुत कम रहे, एक बैग का तो सब कुछ रहे क्योंकि टूर में। लेकिन जब कोई व्यक्ति घर में रहे तो उनका बहुत सारे सामान, घर में कितना सामान पूरा वो इस्तेमाल। तो हमारा जो इस भौतिक जगत में आना है टूर के जैसा, तो हमारे पास ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए। तो लोमस मुनि ऐसे बोल रहे थे, हम कितना दिन रहेंगे, हम क्यों कुटिया बनाएंगे? लेकिन अब जानते हैं लोमस मुनि का कितना आयु कितना है। तो बोलते हैं उनको ऐसे वर मिला, जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग मतलब सत्य तथा दापर कलयुग। सत्ययुग का आयु कितना है? जैसे कलयुग का है 4 लाख मतलब 4,32,000 वर्ष आयु, मतलब इनका ड्यूरेशन है। उसकी दुगुना है दापर का, उसका 3 गुना है तेता का, उसका जो 4 गुना है सत्य का, मतलब 3,20,000 या मतलब है एक चतुर्युग। तो ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा का 12 बार होता है। ऐसे 12 मतलब 24 आवर में ब्रह्मा का एक दिन होता है। उसके बाद एक कॉलर होता है, मतलब कॉलर के बाद एक कॉल का है, कॉलर को एक कॉल। तो एक कॉल में लोमस मुनि का एक लोम गिर जाता है। तो ऐसे लगा उनका शरीर में कितने सारे लोम है, जब उनका सारे लोम गिर जाएगा तो उनका मृत्यु। ये है लोमस मुनि का। फिर भी उन्होंने कुटिया नहीं बना, समझ लीजिए हम कितना दिन के लिए जीते हैं, कोई साल के लिए जीते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि लोमस मुनि इतना मिलने के बाद भी उनको पता चला ये जो भौतिक जगत का मतलब बहुत कुछ स्थान के लिए। तो उसी प्रकार हमारे मन में ऐसी भावना आएगा जब भौतिक जगत ज्यादा दिन के लिए नहीं, हमारा कुछ छोटा कुछ प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम चिंतन करते क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया मेरा,
जैसे मैं सुना एक व्यक्ति का एक फिल्म स्टार थी, उनका नाम था प्रॉब्लम, उनको तो ऑपरेशन किया, कितना 3-4 बार ऑपरेशन किया तो कर ले, कितना रुपये खर्चा करना, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, मतलब कुछ समय के लिए उनको मिला ईश्वरीय, उनका भगवान ने जो करना चाहिए उनको करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कितना रुपये खर्च करते हैं, कुछ सोचते हैं। किसी का बाल गिर जाता तो उनके लिए उनका मौत दिमाग कैसे उनको फिर से लागे। तो जानना चाहिए इस भौतिक जगत क्या है, अनित्य है। ये जानने से क्या होगा, हमारा पीछे भोग कर बिना कैसे चलेगा। उसी को डेजीनेस कैन बी कॉन्कर बाय राइजिंग अप। तो जल्दी उठने से क्या होता है, और चले जाते हैं, हम भाव में नहीं रहते। कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलेंगे, इतना भाव में आ जाते, कभी कभी मंदिर में आते, तो भाव होने के बाद बोलते हैं सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। वो क्या भाव, मतलब दियो लगा डेजीनेस बोलते हैं। लेकिन कोई सुबह उठते हैं तो उनका वो मतलब सही स्थिति में रहते, वो जो कुछ बोलते हो जो मतलब सही कुछ बोलते। अब किसी व्यक्ति का सब देखेंगे तो भक्त संग करके उनका भाव आ जाता अलग से, हाँ सब कुछ अनित्य है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैं भी काल से शुरू करते हैं 16 वाला जाओ, एक दिन 2 दिन अगर मैं नहीं किया उसके बाद बंद कर दे। ये क्या होता है, ये मतलब भाव आ जाते हैं, लेकिन सुबह उठने से इससे मुक्त हो सकते। उसके बाद एंड फॉल्स आर्गुमेंट कैन बी कॉन्कर बाय एक्चुअल असर्टेनमेंट। मतलब है हमारा, हम जब तर्क करते हैं, ठीक है ना, तर्क होता है, इस तर्क को मिथ्या जो होते हैं, फॉल्स मतलब आर्गुमेंट चलता है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब सही जो तथ्य है उसको संग्रह कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे बहुत हम लोग फॉल्स आर्गुमेंट में फंस जाते हैं। उन्होंने जैसे बोलते, हम लास्ट टाइम अप्रैल महीने में मायापुर गया था, हमारा जो क्या बोलते ना संवर्धन क्या होता है, क्या है? तो जैसे यूथ कैंप हुआ, एक भक्त ने बोल रहा है लास्ट अप्रैल में हम लोग गया था, एक बोल रहा है हम लोग अप्रैल नहीं मई महीने में गए। तो दोनों का बहुत आर्गुमेंट चल रहा है। अभी उनको आर्गुमेंट का तो शौक तो नहीं होने वाला है, लेकिन कोई आपके पास कोई तथ्य मिल जाए, मान लीजिए कुछ मैसेज है, कोई आपका पोस्टर है, लास्ट टाइम का कुछ पोस्टर में उनको दिखा दो, तो ऐसे मेरे को दे दे ऐसे, वो अच्छा। उसी प्रकार आर्गुमेंट, फॉल्स आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, उनका तथ्य हमको संग्रह करना चाहिए। तो हम ऐसे बात करें। उसके बाद टॉकेटिवनेस कैन बी अवॉइडेड बाय ग्रेविटी एंड साइलेंस। बहुत बोलते हैं, ठीक है ना, इससे बचने के लिए हमको ग्रेविटी होना चाहिए, साइलेंस मतलब गांभीर्य होना चाहिए और मौन होना चाहिए। तो बोलते हैं हमारा जितना शक्ति होता है वो बोलने से बहुत चलेगा, बोलने के लिए बहुत शक्ति। ऐसे मतलब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से क्या होता है, उनका जो वाक्य का जो शक्ति रहता है चले जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं आप बोलना चाहते हैं तो भगवान के बारे में बोलिए, ज्यादातर बोल सकते। उसके लिए आपको ग्रेविटी या साइलेंस का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, तो जितना तय भगवान के बारे में। लेकिन तो भगवान के बारे में बोलने देते तो बहुत ज्यादा कम ही बोल पाते, ठीक है ना। भगवान के बारे में बोलेंगे 5 मिनट बोलने के बाद दूसरे चीज में हम ज्यादा बोलते हैं, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमको गंभीर होना चाहिए और मौन होना चाहिए, तो हम नेगेटिवनेस से।
and by choice one can avoid carefulness. तो यहाँ पे कहते हैं वीर्य, वीर्य मतलब वीर्य के द्वारा पैसा मुक्त, ब्रह्मचर्य के माध्यम से ब्रह्मचर्य को पालन करते उनका वंश मुक्त। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज कैन बी ऑब्टेन बाय सेल्फ कल्टीवेशन। वन मस्ट बी फ्री फ्रॉम लस्ट, avarice, anger, dreaming, etc. to actually attain the path of salvation. तो उसके बाद आत्मा अनुशीलन के माध्यम से हम ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज कैन बी ऑब्टेन बाय सेल्फ कल्टीवेशन। तो नॉलेज क्या होता है? एक होता है शास्त्रीय जो नॉलेज होता है, शास्त्रों पर काम मिलता है, लेकिन उनका उपलब्धि नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान होता है, तो विज्ञान उनको उपलब्धि करना चाहिए, उनके लिए सेल्फ कल्टीवेशन मतलब अनुशीलन करना चाहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उनका उस चीज आपको जीवन में महसूस होते रहेगा, मतलब महसूस कर पाएंगे वो चीज के बारे में। लेकिन हम सुन ले, जैसे हम जानते हैं हम सोरी नहीं आते, तो ये क्या है? थोड़ा नॉलेज है, लेकिन उनको विज्ञान मतलब उनको प्रैक्टिकली फीलिंग हो रहा है। हम सोरी नहीं, सोरी के साथ रिलेटेड चीज के साथ हम क्या है उससे मुक्त है, और आत्मा का जो आनंद है उनमें हम स्थित है, ठीक है ना। तो एक क्या है? एक विज्ञान है। तो ये करने के लिए हमको क्या प्रैक्टिस करना है, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे तर्क करते हैं, क्या होगा, करने का क्या फायदा है, भगवान है, किधर है, मतलब एक इनका क्या मतलब है। तो उनको तो ऐसे समझा नहीं जा सकता। प्रैक्टिस करेगा का जीवन में दिखेगा। बहुत लोग बोलते हैं आप इतना देर भक्ति कर रहे हैं मंदिर में, भगवान को आप देखा क्या? तो आपको कैसे समझाएंगे भगवान को देखा क्या? भगवान वास्तव में भगवान को तो देखते वक्त लोग, और भगवान का रियलाइजेशन होता है, हर समय होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तो भक्त जो लोग होता है हर समय भगवान को देखते। विमान जनस छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेश विलोचने। जो भक्त होता है हर समय भगवान को देखते हैं, हृदय में विलोकयन विमान जनस छुरित। प्रेम रूप जो अंजन होता है, कज्जल होता है, उनका मतलब चक्षु में कोई मतलब सजते हैं ना, कोई काजल लगाते हैं, वो क्या बोलते आई ऑनिटमेंट, ठीक है ना। तो उसको लगाने में देखने में सुंदर होता है, लेकिन वास्तव में आपका कृष्ण प्रेम का ऑनिटमेंट लगाना चाहिए, तब हम भगवान हर जगह पर भगवान। तो ये क्या है? प्रैक्टिस करना चाहिए। सेल्फ कल्टीवेशन के माध्यम से हमारा जो नॉलेज होता है उनका सिद्धि होता है, परफेक्ट होता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे खूब सुंदर ढंग से विश्वदेव ने मतलब सारी चीज के बारे में मोक्ष धर्म एवं मोक्ष धर्म का अंडर में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से और अलग अलग चीज के बारे में उन्होंने कहा, इसी से मुक्त हो जाए। उसके बाद और स्त्री धर्म ऐसे उसके बारे में, भगवत धर्म के बारे में कहते। तो बस स्त्री धर्म के बारे में कहते हैं, जो स्त्री लोग जो होता है पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली, और पुरुष का जो मतलब उत्साह जो मिलता है स्त्री से मिलता है कार्य करने का। एक आ जाते हैं, लेकिन क्या है, स्त्री शक्तिशाली होता है और स्त्री लोग को लज्जा के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। साइनेस, स्त्री का अंदर साइनेस होना चाहिए, लज्जा के माध्यम से वो कंट्रोल।
लेकिन किसी का साइनस नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है, तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रभुपाद के यहाँ पर कह रहे तो उनको महिला जो है उनको साइनस होता है। उसके बाद भागवत धर्म के बारे में प्रभुपाद कहते हैं, कह रहे हैं तो भागवत धर्म मतलब भगवान का सेवा करना। तो घर में जो रहते हैं उनको डिटी वर्शिप करना चाहिए। जिस घर में भगवान का डिटी या अर्चा विग्रह अर्चा नहीं हो तो मतलब फोटो रहना चाहिए, नहीं रहते भगवान का पूजा नहीं करते तो वो घर क्या नरक का जैसा खेल है। तो घर में भगवान का चित्रपट या डिटी होना चाहिए और सुबह शाम आरती होना चाहिए, भगवत कथा होना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसे दिन भर मतलब भगवत चिंतन होना चाहिए सुबह से शाम तक। ये है क्या भगवत धर्म। ऊपर एक उदाहरण देते हैं, तो हमारे इंडिया में एक अच्छा फैमिली था, बहुत ही बहुत बड़ा फैमिली। उनका फैमिली में राधा गोविंद का ड्यूटी था, उनका फैमिली मेंबर बहुत बढ़ गया, मतलब बहुत धीरे धीरे उनका बढ़ते रहा, फैमिली बढ़ते रहा, लेकिन उनका जो ड्यूटी है उन ड्यूटी को सब लोग सेवा करते कहते थे। जो वो लोग हर दिन भगवान के पास जाते थे, जाकर प्रणाम करते थे। हर मेंबर प्रणाम करेगा, प्रार्थना करेगा और चरणामृत लेंगे। हर दिन उन्होंने भगवान के पास जाएंगे। कोई व्यक्ति नहीं जाते तो उनके लिए उनको फाइन देना पड़ेगा। वहाँ पर जो पुजारी रहते हैं उन्होंने बोलते हैं आप कल भगवान को दर्शन करने के नहीं आया, इसलिए आपको 500 रुपीज या 200 रुपीज फाइन देना पड़ेगा। लोगों के कल नहीं आया, चलो 200 रुपये। ऐसे मतलब सिस्टम हर दिन उन्होंने हर मेंबर भगवान के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे चरण में। तो ये है मतलब भगवत धर्म, मतलब श्रवण कीर्तन आदि जो नवविधा भक्ति होता है, ये है भगवत धर्म। पढ़ना चाहिए। तो पहला शुरू होता है श्रवण करने से, भगवान का कथा सुनने से। भगवान का कथा हम सुनेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे, और कीर्तन ठीक से करेंगे स्मरण भी होगा, बाकी चीज सब कुछ होगा। इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जितना हम सुनेंगे उतना आध्यात्मिक रिलेशन उतना अच्छा। ओके, हरे कृष्णा। मैं यहाँ पर रखता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। मेरा আমি বাংলায় বলছি বাবু। ঠিক আছে। বলছি আমার একটা কোশ্চেন আছে। আপনি বললেন যে কারো যদি ক্রোধ আসে তখন তাকে তার ক্ষমা করে দেওয়া উচিত, তাহলে ক্রোধটা চলে যায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ক্রোধ আসে কিন্তু আমরা বলি না, কিন্তু আমাদের ভেতরে ভেতরে ক্রোধ চলতে থাকে। তো ওইটাকে কি করে আমরা কন্ট্রোল করব? মানে তার প্রতি ভেতরে ভেতরে ক্রোধ চলতে থাকে। এটা ভালো যে বাইরে প্রকাশ হচ্ছে না, हमने কিছুটা कंट्रोल আছে, ठीक है ना, थोड़ा सा कंट्रोल है। अब तो बाहर मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बाहर में एक्सप्रेस करना तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं। अभी आपका अंदर में रखने मतलब आपका थोड़ा कंट्रोल है, ठीक है ना, लेकिन इसको भी आपको धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रोध क्यों होता है आपको जानना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए क्यों क्रोध। मतलब आपका आप जैसे चाहते हैं दूसरे लोग ऐसे नहीं करते, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो क्या है, इनको आप अच्छा से समझा सकते हैं, क्रोध नहीं करके भी समझा सकते हैं। ऐसे नहीं आप क्रोध करेंगे तो अच्छा से समझ जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता। आप अच्छा से समझाएंगे तो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए देखना चाहिए जो हम क्रोध जो कर रहे हैं इसके लिए हम चाहते हैं वो जो चीज सही हो, जो गलत किया उसको ठीक किया, ठीक है ना। इसलिए
हमको अच्छा से भी हम उनको समझा सकते हैं, और कुछ जगह पर हमको क्रोध भी करना चाहते हैं, नहीं तो क्रोध भी करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। क्रोध सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम खुद प्रभावित हो गए तो मतलब हमारे अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनका तो है, उन्होंने गलत किया, लेकिन हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है, हम उनके माध्यम से क्रोधित हो गए। ठीक है ना? जैसे एक भी कहा जाते हैं, भी कहते हैं दूसरे व्यक्ति आपका ऊपर कैसे बिहेवियर करेगा उसका आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपको गलत बिहेवियर करने के बाद आप उनको कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपका अंदर, आपका हाथ में। तो क्या करना चाहिए, उनको संशोधन करना चाहिए ना खुद को संशोधन करना चाहिए? खुद को संशोधन। देखिए उनको आप जितना बार बोलेंगे उनको शायद होगा, कभी नहीं होगा। तो हम उनको रिएक्ट नहीं करें, हमारे पास है कंट्रोल। ठीक है, उन्होंने गलत किया और मतलब ठीक है, मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं हमको कर लेगा। सिंपल। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? सब भक्तों से निवेदन है कि आप लोग इस बहुत अच्छा मौका है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सबको अच्छा लगा क्लास? हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग क्लास और बहुत अच्छा शिक्षा है। और एक चीज की है कि प्रभु खुद पालन कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। तो अगर आप प्रभु से पूछेंगे तो आपको बहुत मैच्योर और डीप आंसर मिलेगा। तो ये सारा प्रैक्टिकल चीज है, और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी भक्त लोग बिना कोई मतलब भय से आप प्रश्न पूछ सकते हैं आपका आध्यात्मिक कल्याण के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। প্রভু বলছি মাস্টার্য থেকে বাঁচার একটা মানে মানে যে ঈর্ষা থেকে কি করে মানে আমরা মুক্তি পেতে পারি? जैसे ईर्षा होता है, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते भगवत भक्ति में। ठीक है ना? तो पहले हमारे ईर्षा का कारण होता है जो हम भगवान का प्रति ईर्षा नहीं, इसके कारण में हमारे इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो भगवान का प्रति हम ईर्षा छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो दूसरे का प्रति भी हम ईर्षा नहीं करेंगे। तो भक्ति के माध्यम से हम ईर्षा से मुक्त हो सकते हैं। भगवान का प्रति हमारी ईर्षा चल रही है। भगवान क्योंकि उन्होंने भोक्ता है, भगवान ये देखकर हमारा मन में ईर्षा होता है, भगवान क्यों ऐसे है, हम क्यों नहीं, हम भी वैसे होना चाहते हैं। तो ये ईर्षा हो जाती है, इसके कारण में हमारा भौतिक जगत। तो हम भक्ति करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, हम भोग नहीं करना चाहते, हम भगवान को सेवा करना चाहते हैं। ये हमारा वास्तव में क्या है, ये हमारा सही स्थिति है, और जीवात्मा का ये स्थिति है भगवान को सेवा करना, और सेवा करने से हमको आनंद मिलेगा, तो ईर्षा करने से नहीं है। ईर्षा करने से हमको आनंद नहीं मिलेगा। तो ईर्षा को हम आध्यात्मिक जगत में देखेंगे, वो क्या है, हेल्थी कंपटीशन होता है। हेल्थी कंपटीशन मतलब कोई व्यक्ति ऐसी सेवा कर रहा है, चलो हम भी और अच्छे से सेवा। वो व्यक्ति ने, वो भक्त ने सुबह उठ जाते, मंगल आरती का पहले उनका जॉब हो जाते 4 बार। हम भी कोशिश करेंगे जल्दी उठकर जाते। ये जो है हेल्थी कंपटीशन, मतलब उनसे हम कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन ईर्षा क्या होता है, उनका क्षति करेगा। कुछ उन्होंने करा, उनको बंद कर देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो कर रहे, करने दीजिए, हम भी उनसे बेटर करेंगे, तो ये ठीक है। ठीक है,
लेकिन वो पहले वो कैसे उनको करना बंद हो जाए, उन्होंने जल्दी सुबह उठ रहे और मंगल आरती कर रहे, चलो उनको कैसे बंद हो जाए, कैसे हो जाए? नहीं, हमको क्या करना है, उन्होंने करे और हम भी अच्छा से करें। तो ऐसे ईर्ष्या से हम ईर्ष्या के हमारे जीवन के आने का कारण हाँ, वो আরেকবার বলুন তো। ঈর্ষা হচ্ছে কি আমাদের ভৌতিক জগতে আসার কারণ, ঠিক না? আচ্ছা আমরা ভগবানের প্রতি ঈর্ষা করি, তার জন্য আমরা এই জড় জগতে আসছি। Yes? ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ঠিক আছে মাধব প্রভু, হ্যাঁ আর কিছু অ্যাড করতে চান? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु अपना ईगो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रभु? ओके, ईगो बहुत सटल होता है, ठीक है ना? पहले क्या है, इंद्रिया है, उसके बाद मन के बाद बुद्धि होता है, बुद्धि के बाद ईगो होता है, उसके बाद आत्मा होता है, ठीक है ना? तो अभी पहले हमारा इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, उसके बाद आप ईगो को कंट्रोल कर सकते। ईगो जो होता है मतलब बहुत सटल होता है। तो ईगो दो प्रकार का होता है, एक मतलब मिथ्या अहंकार होता है और एक सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? फॉल्स ईगो क्या है? आई एम दिस बॉडी, ठीक है ना? आई एम इंडियन। तो मतलब ये जो ईगो है ये मिथ्या होता है। हम शरीर के साथ हमारा आइडेंटिटी मतलब हम खुद को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, भगवान का दास है। तो ये क्या है, मतलब ट्रू ईगो है। हम भगवान का दास है, हम भगवान का सेवक है, भगवान को सेवा करना चाहिए, ये ट्रू ईगो है। हम जब भगवान का सेवा करेंगे तो मतलब फॉल्स ईगो से हम मुक्त हो जाएंगे। फॉल्स ईगो मतलब इस शरीर को हम मानना है, हम इंडियन है, हम बांगाली, हम हिंदी भाषी, এটা হচ্ছে কি মানে फॉल्स ईगो। लेकिन हमारा असली ईगो है, हम भगवान का दास है और आत्मा, मैं आत्मा हूँ। तो भगवान का हमको सेवा करना चाहिए। जब भगवान का सेवा करेंगे धीरे धीरे हम फॉल्स ईगो से। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा प्रश्न है कि बहुत बार हमको गुस्सा आता है, लेकिन हम गुस्सा को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब अंदर दबा देते हैं। तो क्या गुस्सा का एक सही रूप देना चाहिए क्या? मतलब गुस्सा को निकाल देना चाहिए, दबाई देना चाहिए? तो गुस्सा कैसे निकलाएंगे, मतलब निकालेंगे? कभी कभी ना, मतलब जैसे कि मेरे अनुकूल ना हो, मतलब तो एक बड़ा रख दीजिए, क्या है, बालू का। गुस्सा आएगा से ऐसे मारते रहेंगे, पूरा गुस्सा निकल जाएगा। लेकिन गुस्सा तो किसी वक्तव्य को नहीं कर देना चाहिए, तो क्या निकल देना नहीं देना चाहिए, वो तो अपराध हो जाएगा, ठीक है ना? भक्त तो करते नहीं, मतलब जो अभक्त है। गुस्सा को अब निकल सकते हैं, जैसे मैं बोला, पहले उनको कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद जो भगवान का विरुद्ध में जा रहा है, भक्तों को निंदा कर, उस समय गुस्सा कर सकते, या यस कोई भक्ति का तत्व नहीं मान रहे तो उनको उस समय गुस्सा किया, लेकिन वो गुस्सा भी बहुत कंट्रोल होना चाहिए। बाहर का जगत, लेकिन बाहर का जगत में क्या होता है, ज्यादातर आपको सहन करना चाहिए, ज्यादातर आपको सहन करना चाहिए। देखिए हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, ये हमारे कर्मों का फल होता है। और हमारा जीवन में जो दुख होता है, एक अवंती ब्राह्मण थे, अवंती ब्राह्मण, उन्होंने पहले बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत क्रूर था। बाद में क्या, उनका संपत्ति पूरा चले गए,
और उन्होंने उनका जो परिवार का लोग थे वो लोग सब ले लिया और टैक्स मतलब सरकार ने कुछ ले लिया, तो बाद में उन्होंने पूरा संन्यास बन गया। संन्यास में बन गया तो बाहर का जो लोग थे वो बोलते देखो एक बहुत बड़ा भंड है, पहले ऐसे था अभी अभी बन गया ना। तो उन्होंने उनका जो सामान है वो सामान लेकर ले लेते थे, उनको मतलब कोई खाना मिला, खाने जा रहे वहाँ पर खाने का चीज में पेशाब कर देते थे, उनका ऊपर थूक देते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं बोलते, पूरा सहन कर। उसके बाद उन्होंने एक गीत लिखा। वो गीत में ऐसे है, जो हमारा जीवन में दुख का मूल कारण है मन है। ये मन हमारे को कष्ट देता है, दुख देता है, दूसरे कोई लोग कष्ट नहीं देता। हमको मन को नियंत्रण करना चाहिए। देखिए उनका सामान ले लेते हैं, उनका शरीर में पेशाब भी कर देते, थूक भी देते, कुछ भी नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा महात्मा बना। तो क्या उसी प्रकार हमारे जीवन में देखना चाहिए। आप कुछ मान लीजिए आप पिता है या आप कुछ कंपनी का मालिक है, तो वहाँ पर आपको जो काम कर रहे हैं उनको आपको ठीक रखने के लिए गुस्सा करना चाहिए। कुछ गुस्सा मतलब उसका तरफ प्रभावित नहीं होना चाहिए, हर समय जानना चाहिए उसका तरफ प्रभावित नहीं, अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसको ठीक लाइन में लाने के लिए गुस्सा करना चाहिए, शासन करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। कुछ कुछ जगह पर हमारा अधिकार नहीं रहता, गुस्सा करके कुछ हो रहा है। तो जहाँ पर आपका ड्यूटी है, आपका पुत्र है, उनको आपको ट्रेनिंग देना है, वो गुस्सा भी दिखाना है, ठीक है ना, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनका तरफ प्रभावित नहीं होना चाहिए या ऐसे। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। প্রভু বলছি প্রভু ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ প্রভু করবো কি করে? ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ প্রভু বলছি মানে ক্রোধ রাগ নিয়ন্ত্রণ করবো কি করে? এটা বলা হলো ক্ষমা করার জন্য প্র্যাকটিস, যখন আধ্যাত্মিক প্র্যাকটিস করবো তখন এটা আমাদের হবে। এটা প্র্যাকটিস দাও, ক্ষমা করা, ঠিক আছে, उनको क्षमा। और व्यक्ति मतलब गलत काम करते हैं, उनको क्षमा कर देना चाहिए। हम भी गलत करते नहीं करते? जी प्रभु। हम भी गलत काम करते नहीं करते? करते हैं प्रभु। हम आप दूसरे को क्षमा करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी आपको क्षमा करेंगे। यस प्रभु। नहीं तो आप भी कुछ गलत काम करते रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे। आप जितना व्यक्ति को क्षमा करेंगे, आपको भी कुछ गलत हो जाएगा तो दूसरे व्यक्ति आपको क्षमा करेंगे। ये जानना चाहिए, हम भी गलत काम करते हैं तो हमारा भी गलती होता है, तो हम दूसरे का गलती देखकर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ओके प्रभु। वो बात कहते थे एक भक्त को, जो मैं आपको जितना सहन कर रहे अब दूसरे व्यक्ति को इतना सहन कर, तो दूसरा व्यक्ति के साथ कुछ ये हो रहा था, मतलब नहीं, मतलब उनका साथ जम नहीं रहा। तो पोपट बोला मैं आपको जैसे सहन कर रहे आप उनको भी ऐसे सहन करो। उसका मतलब है पोपट उनको सहन कर रहे हैं, उन्होंने उनका अंदर में बहुत सारे गलती चीज है, लेकिन पोपट सहन कर रहे हैं। पोपट बोले आप भी दूसरे को अंदर कुछ गलती है तो सहन करो। ओके, तो माधव विलम्ब को कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। तो हरे कृष्णा, सबसे निवेदन है आप लोग बने रहिए और 10 मिनट एटलीस्ट। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर हो रहा है। तो पहला अनाउंसमेंट है कि अगला 31 तारीख जो है 31 अक्टूबर, वो है सैटरडे। तो उस दिन से कार्तिक महीने का शुरुआत हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक महीना बाकी सारे महीने से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय महीना है। तो आप सब लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, ध्यान पूर्वक और बहुत श्रद्धा पूर्वक इस कार्तिक महीने का उद्यापन करिए। विशेष करके कार्तिक महीने में लैंप ऑफरिंग करना चाहिए भगवान को। और फिर
आपको एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहिए कार्तिक महीने में। और सबसे अच्छा होता है कि भक्त लोग, जैसे आज प्रभु जी बोल रहे थे कि हम सुबह उठे और सुबह उठ के हैं भगवान के नाम का जप करें और भागवतम पढ़े, भागवत गीता पढ़े। तो और कार्तिक महीने में उड़द दाल जो है वो वर्जित है। तो ये पहला अनाउंसमेंट है। तो आप लोग कार्तिक महीना बहुत अच्छे से पालन करिए। अगर कार्तिक महीना पालन करते हैं तो राधा रानी का विशेष कृपा प्राप्त होता है और राधा रानी के कृपा से कृष्ण मिलते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट है कि अगले संडे को जैसा क्लास होता है, मतलब क्लास का टाइमिंग है, अभी है दुर्गा पूजा के समय यात्रा के कारण टाइमिंग अलग अलग था। तो मैं धन्यवाद देता हूँ भक्त लोग जो दुर्गा पूजा अटेंड किए हैं, दुर्गा पूजा यात्रा। तो उनके लिए स्पेशल गिफ्ट रहेगा लॉकडाउन के बाद और प्रसाद। और तो सीनियर बैच का क्लास 3:30 बजे से होगा और पॉजिटिव थिंकर बैच 1 बैच 2 का क्लास होगा 6:30 बजे से। तो आप लोग जरूर रहिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हिज होलीनेस राधा रमन स्वामी महाराज, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम हम प्रयास कर रहे थे महाराज के एसोसिएशन, तो महाराज मंडे क्लास दे सकते हैं। तो अगर मंडे महाराज क्लास देते हैं तो संडे हम अनाउंसमेंट कर देंगे। तो उस केस में उस वीक में हम लोग वीक के बीच का क्लास मंडे करेंगे, क्योंकि महाराज वृंदावन यात्रा होता है, 1 महीने का वृंदावन यात्रा। तो महाराज उस वृंदावन यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग मतलब पैदल यात्रा होता है। तो महाराज यात्रा के बीच में रहेंगे, तो उसमें महाराज के सुविधा के अनुसार हम लोगों को रहना पड़ेगा। तो महाराज मंडे को मधुबन रहेंगे, जिधर ध्रुव महाराज तपस्या किए थे और भगवान का दर्शन प्राप्त किए थे। तो इसलिए पहले से आपका माइंड सेट और क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी बना के रखिएगा। मंडे इवनिंग मे बी 6:30 to 7 o'clock। तो उसका फाइनल अनाउंसमेंट हम कर देंगे संडे को। और वृंदावन में हर जगह में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो किसी भी दिन शायद महाराज का इच्छा होगा भी तो हम लोगों को शायद मिलेगा नहीं। तो इसलिए कृपा करके, ऐसे बहुत रेयर एसोसिएशन है महाराज का, बहुत लोगों को मिला है पहले, तो उसका बेनिफिट आप लोग जरूर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अक्षय प्रभु से रिक्वेस्ट है, आप सेकंड अटेंडेंस ले सकते हैं सभी भक्तों का, और सारे कोऑर्डिनेटर्स यू टेक अटेंडेंस ऑफ ऑल द बॉयज। सो नाउ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आजकल शास्त्रों में लिखा है कि वुमेन शुड बी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मेन, बट आजकल इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जहाँ पे वुमेन को अपने राइट्स नहीं मिलते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो इसकी वजह से वुमेन प्रोटेस्ट पे आते हैं कि फेमिनिज्म एंड ऑल ऑफ फेमिनिज्म, वुमेन इक्वालिटी, ये सब होता है। तो इस केस में वुमेन प्रोटेक्टेड कैसे महसूस करे? आपका क्या सोल्यूशन है इसके ऊपर? अभी क्या है, वास्तव परिस्थिति ऐसे है, जो हमारा जो वैदिक जो सिस्टम है उसको फॉलो नहीं होता है। वैदिक सिस्टम में ऐसे जो एक मतलब लड़की को पहले उनका पिता माता का तत्वावधान में रहना चाहिए, और जब शादी हो जाते हैं तो उनका हस्बैंड का, और बाद में उनका पुत्र का तत्वावधान में रहना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, इस युग में देखते हैं महिला लोग भी उन्होंने भी समान मतलब होना चाहते हैं। लेकिन वैदिक जो संस्कृति होता है उसमें पुरुष और जो महिला वो दोनों समान नहीं था, ऐसे कुछ नहीं। दोनों का जो मतलब वैल्यू था समान था, और उससे भी ज्यादा भी था। महिला को जो ज्यादा उनको सम्मान किया जाता था। तो जैसे हमारा जो शरीर का, पुरुष शरीर और महिला शरीर का अलग अलग होता है। तो पुरुष के लिए जैसे बाहर में काम करना और बाहर का जो परिस्थिति उनको संभालना उनके लिए बहुत आसान होता है, और महिला के लिए घर का संभालना, घर का फैमिली मेंबर के साथ डीलिंग करना बहुत आसान होता है। तो ये दोनों मतलब दोनों का जो सम्मान होता है किसी का कम नहीं कर सकते। वो बाहर में
कर रहा है, एक घर में कर रहा है, तो दोनों को समान है। और जैसे बच्चे लोग होते हैं उनको भी माता से बहुत कुछ सीखते हैं, घर में उनको गाइड गाइड मिलता है। तो अभी जो मतलब महिला का जो समान अधिकार देने का जो बात चल रहा है, वो क्या है, समान का मतलब हमारा जैसे क्या होता है, अलग अलग चीज का अलग अलग उनका ये होता है। जैसे जो घोड़े मतलब जो हॉर्स होता है और एलिफेंट होता है, हॉर्स का कुछ वो क्या बहुत जोर से भागते हैं, एलिफेंट का और दूसरा उनका कैरेक्टर मतलब है। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, नहीं सब लोग हॉर्स बन जाओ या सब लोग हाथी बन जाओ, ये है मतलब इक्वलिटी। ठीक है, इक्वल मतलब है नहीं, हाथी को भी सम्मान देना चाहिए, और जो ये है आपका जो हॉर्स है घोड़ा है उनको भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन अभी का इक्वलिटी का नहीं, पुरुष लोग भी प्लेन चला रहे तो महिला भी प्लेन चलाएंगे, ये इक्वलिटी नहीं है। उनको रेस्पेक्ट देना, उनको उनका उनका जो उन्होंने जो कुछ कंट्रीब्यूशन करे उनको मतलब सम्मान देना। जैसे हमारा शरीर का अंग होता है, हाथ पैर मतलब माथा होता है, इसमें कोई अंग मतलब हमको कमी नहीं लगता है। जो पैर बोलते नीचे रहते वो पैर का कुछ ये नहीं, उसको हम पिटाई करें, ऐसे नहीं होता है। ये माथा जो है, हम सारे अंगों को रेस्पेक्ट देते हैं और उनको मतलब उनको प्यार करते हैं। इसमें हमारा शरीर का हर अंग मतलब इम्पोर्टेंट है, उनको हम सम्मान देते हैं। और वो सारे अंग मिलकर हमारा हमको मतलब शरीर को मेंटेन करते हैं। उसी प्रकार इस समाज में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रोल है, और उस रोल में आपको जब ठीक काम करें, अभी बोलेंगे पैर बोलेंगे हम काल से खाना शुरू कर दें, अब हाथ बोलेंगे अब काल से करना शुरू करें, ये इक्वलिटी नहीं है। ठीक है ना, आके बोला आप देखेंगे नहीं, अभी कान से देखना शुरू करेंगे, ऐसे ये इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी उनका जो जिनका मतलब जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनका चरित्र है, उनको काम में लगाए और उनको सबको सम्मान दे, ये इक्वलिटी। लेकिन अभी जो कहा हो रहा है ऐसे मतलब सबका बाह्यिक रूप में एक होना चाहते हैं, ठीक है। ओके प्रभु जी, यस, ओके, थैंक यू प्रभु जी। अभी एक्चुअली ऐसे बोलने जाएंगे तो अभी ऐसे परिस्थिति में बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे आप लोग कैसे कठोर होता है, आप लोग कैसे, लेकिन वास्तव में देखेंगे शास्त्र के अनुसार सुखी हो सकते। ओके, या कोई क्वेश्चन है? नहीं तो समाप्त कर दूंगा। क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन, नहीं तो यहाँ ठीक है। If devotees can ask question, last question, any devotees? हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पालक प्रसाद प्रभु को और इस वेरी वैल्यूएबल एसोसिएशन। तो पर्सनली मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला, प्रभु का बहुत क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही परफेक्ट आंसर है और बहुत इंस्पिरेशनल है। तो आप सबको अच्छा लगा क्लास? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ध्यान देंगे प्रभु और भी आप लोग एसोसिएशन दें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पालक प्रभु को कि फ्यूचर में भी हैं सभी भक्तों को उनके एसोसिएशन दे और हमारे जो वॉइस है वॉइस विजिट करे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मिलकर, और माधव को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और माधव बहुत उत्साहित भक्त है, हम देखते तो हर चीज में बहुत उत्साह है, और उपवाद का बहुत मतलब बहुत डेडिकेटेड है भक्ति में, और आप उनसे गाइड ले रहे हैं
उनको मान के चलिए, और उन्होंने जैसे गाइड दे रहे हैं तो आपका जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं सुना बहुत अच्छा प्रचार भी हो रहा है, तो ये प्रभु का बहुत उत्साह है। हम देखा जितना उनका साथ हम भी भक्ति से प्रचार किया, उन्होंने बहुत सारे भक्तों को मतलब कॉन्ग्रेगेशन बहुत सारी प्रीचिंग किया उन्होंने, और वो लोग भी अच्छा से प्रचार कर रहे हैं कॉन्ग्रेगेशन। तो बाद में उन्होंने कॉन्ग्रेगेशन प्रीचिंग छोड़ करके ईद प्रीचिंग में ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। तो अभी देख रहे हैं बहुत सारे यूथ भी उनसे जुड़े हैं और अच्छा से उन्होंने प्रचार कर रहे हैं। पोपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पोपाद का हम देखते बहुत उत्साह है, कहते हैं पोपाद का बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनका बहुत अच्छा पोजीशन रहता है, तो सारे ब्रह्मचारी का अंदर उन्हें फर्स्ट होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्चुअली ये सब प्रेरणा मेरे को प्रभु से मिलता है। मेरे को पर्सनली स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत प्रेरणा मिलता है प्रभु से, उनका पर्सनल लाइफ, उनका भक्ति, उनका एटीट्यूड, सर्विसेज और गुरु भक्ति, साधना, तो सब कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और मेरे लाइफ में कभी भी कोई कठिनाई आता है तो मैं गाइड देने की प्रयास करता हूँ। और आप लोग भी कभी भी आपको किसी भी समय आपको कभी फ्यूचर लाइफ में हेल्प चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन है, डिफिकल्टीज हैं, तो प्रभु को कभी भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आपका समय में पता नहीं, मैं आज कोशिश किया मेरा जितना अभिज्ञता है उसको मैं आपसे और कल भी मौका मिलेगा तो हरे कृष्ण। तो हम लोग धन्यवाद देंगे इस गेस्ट पालक पाठशाला के लोगों को, उनके वैल्यूएबल एसोसिएशन और उनके सर्विस के लिए। उनको 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गेस्ट पालक पाठशाला प्रभु की जय। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जैसे आप साधना रिपोर्ट भेज रहे थे तो